Hello, dear engineers and technocrats. In today's session, you will learn to establish trial and final control limits of a C chart. You will also learn to plot and interpret a C chart. Now, you know that quality is always defined by customer, and quality is conformance to customer requirement. तो कस्टमर रिक्वायरमेंट के आसपास you have to find out a characteristics which is to be measured, and that is called quality characteristics. तो जो क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स है ये जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है उससे डिराइव होगी। और जब आप क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, व्हेन यू कस्टमर की क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, देन यू नो कि किसी भी इंप्रूवमेंट को हासिल करने के लिए यू हैव टू मेजर इट एंड यू हैव टू monitor it continuously in order to control it within the some specified limits. Okay, so now when you measure a quality characteristics, you can measure either on a continuous scale or a discrete scale. If you are measuring a quality characteristics on a continuous scale, then such a quality characteristics is called variable quality characteristics. And when you measure a quality characteristics on a discrete, or you can say a countable scale, then you call it attribute type quality characteristics. So when you are measuring a quality characteristics, and if it is on a continuous scale, you call it variable type, and when you measure on a discrete or countable scale, you call it attribute type of quality characteristics. So when we have a variable type of quality characteristics, now when we measure and we continuously monitor this quality characteristics, we need some chart. So for variable quality characteristics, we have a combination of X bar and R chart, or another combination is X bar and sigma chart. You know that X bar chart is used to measure central tendency, whereas R and sigma chart measures variability. And these both charts are used when we have a variable type of quality characteristics. This X bar R chart is more popular, and we will take in one of our sessions. Another type of quality characteristics is attribute type. So when we measure a quality characteristics on a discrete scale or countable scale, then we call it as attribute type of quality characteristics. Now when you count, so you can have number from 0 to positive number from 0, 1, 2, and so on, any positive integer, or you can say whole number. It will be a whole number. So if you are counting, or your quality characteristics is taking whole number values, then for such values we have a chart that is called C chart. And when your countable characteristics has two outcomes on it, when this attribute type of quality characteristics has two outcomes,
For example, when you toss a coin, there are two outcomes. Either it may be head or a tail. When you appear in an exam, you either you pass or fail. So when you have two outcomes, and you know these when you have two outcome only, so you have binary outcomes. You can say you have binary outcomes, either yes or no, or either 0 or 1. Either you have yes or no, or 0 or 1, or you can say defective or non-defective, or you can say conforming or non-conforming. So based upon these, only when you have two outcomes, you know for such a experiment you have a binomial distribution. You have a binomial distribution. So you can say this type of experiments follows binomial distribution, and for such quality characteristics we have a chart that is called P chart. So now it is clear to you that when attribute quality characteristics have whole number values, outcome of quality characteristics can be whole number values. So such a values will follow Poisson distribution. So it will be a Poisson distribution, and chart would be C chart. And if your quality characteristics can take only two values, like when you toss a coin, so such values will follow binomial distribution, and for such values we plot a chart that is known as P chart. So we will discuss today we will discuss C chart, and in next session we will take up P chart. Please, when quality characteristics is attribute type, so associated charts are called attribute charts, or you can say P and C chart are attribute charts. Now for such quality characteristics, a product is assessed in terms of attributes. Now attributes can be any number of late deliveries. जैसे कि आपका कोई एक आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जितना टाइम में डिलीवरी आनी चाहिए, जैसे मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में जाने के बाद 20 मिनट के बाद डिलीवरी आती है, या कोई आपका सप्लायर किसी कंपनी में सामान बेचता है, उसका 1 वीक का लीड टाइम है, 1 वीक लीड टाइम है, तो इससे वो लेट कितनी लाता है, कितने लेट डिलीवरीज देता है और कितने टाइम पे देता है. So you can count them, right? So it can be 0, 1, 2, 3 and so on. Similarly, you make several calls in a day and few of them are drop calls. So you can count them. So when you assess the quality of a phone providing company like Jio or Airtel, you can assess the quality by counting the drop calls. Or in any restaurant and supplier and delivery boy, you can of Amazon and suppose e-commerce company, you can measure the quality in terms of late deliveries. Similarly, number of rotten potatoes found in a sack of potatoes, you can count them and you can assess the quality. Suppose you are hiring a person for typing purpose. So you count the number of typing mistakes made on each paper or throughout a day on several papers. So you count them and assess the quality of the typewriter. Similarly, when you cast components or when you are performing welds, so you can count the number of casting and welding defects on such components to assess the quality. So several times, when you measure the quality, it takes a lot of time. It is time consuming as well as a lot of cost is incurred. So to save time and cost, generally quality is assessed in terms of attributes, so by counting. So this is more frequently used, and in any type of industry or any type of product, you can make use of these attribute charts. And when the so
You have for attribute, you have two things. One is defect and another one is defective. One is defect and another one is defective. So late delivery will be considered as defects. Similarly, dropped calls would be considered as defect. Rotten potatoes in a sack of potato would be considered as defect. And in a casting, you have a several type of defects you can count them. So when we are counting defects, right now, if any of the defect is present, you have a product on in this you have a several type of defects. If any of the defect is present on this component, then this component is or item is called defective. That is defective. So there is a difference between defective and defect, and that you should remember. So if any of the defect is present, then due to presence of this defect, the product would be either defective or non-defective. So here only there can be two outcomes. Either product may be defective or non-defective. So it will follow binomial distribution and we will use P chart. But when you are counting number of defects, then it can take value from 0 to 1, 2, 3, 4 and so on. So any whole number value would be there and it would follow Poisson distribution and we will use C chart. So when you are concerned with defects, we go for C chart, and when you are counting defectives, not counting defective, whether your product is defective or not defective, then we follow P chart, right? Okay. So let's move further. Now a product can have multiple number of defects. Even a single product, you can have a multiple number of defects. For example, you take a cylindrical rod. This rod can have a crack, bend, some tolerances issue or some eccentricity issues. Like if you have a casting, now casting, you have several type of defects like blowhole, pinhole, misrun, cold shut, drop, swelling, hot tears. So you can have any of defects, or you can have several of type of defects on a single piece. So this is a picture shows a single casting of a single product where you have porosity type of defect, you have foreign inclusion, you have blister, you have air, gas and bubbles, you have scar and hot tears on it. So you will count all these defects. So you have one type of defect, two type of defect, three type of defect, and when you count, so there are several number of defects. Similarly, you take a shirt. If you are taking a shirt, on shirt you may have a stitches problem, you may have a iron problem, you may have button problem. So all such defects can be counted, and so even a product can have a number of defects. So when we consider the C chart, or like take another example of welding defects. So in a weld you can have, this is the ideal weld, there is no defect, but sometimes you can have crack, porosity due to air bubbles, you can have undercut or foreign particle inclusion or incomplete penetration or fusion like defects. So in a single weld, several times you can find crack also and porosity. So those would be considered as two defects then. So a product can have multiple defects, or multiple products can have several number of defects. So C chart can be used for a single product also. C chart can be used for a single product, or you can take a sample in which you can have a subgroup size of 3 to 5, and out of those 3, 5 you count the number of defects. So in both ways you can see, but for C chart the subgroup size should remain constant. We will discuss it further in detail. So number of defects in the manufactured item or subgroup sample, which varied as a matter of chance.
and take only whole number value, right? So whatever number of defects you have on a item or a subgroup sample, they can take any whole number value, and this number will vary as a matter of chance, right? And for such whole number value which are varying as a matter of chance generally follows Poisson distribution. And you know that for Poisson distribution, both mean and variance are same. So this is important thing which you should remember, that for Poisson distribution, this is not for Poisson distribution, the both mean and variance are same. These mean and variance are same only for Poisson equal for Poisson distribution. For remaining distribution, you have a different value of mean and different value of variance. And you know that standard deviation, standard deviation, that is the root of variance, that is the square root of standard deviation जो होता है वो होता है ये variance का, right? Variance. So जब मीन और स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, SD would be equal to root of mean value, root of mean value. This you should remember that in case of Poisson distribution, standard deviation is equal to root of mean value. Okay, with this understanding, we move further. Now let's assume that when we count number of defects for several components and we take the average, that is called average number of defects is C bar, then control limit of C chart is given by, you know control limit क्या होता है? Control limit होता है आपका mean value mu plus minus 3 sigma. 3 sigma. Sigma is your standard deviation. और अभी आपने पता किया है कि ये जो mu है प्लस माइनस, और अगर ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा क्या होता है? रूट ऑफ म्यू. अभी आपने देखा मीन का रूट के इक्वल होता है, तो ये हो गया म्यू. ओके, सो इन केस ऑफ सी चार्ट, this central line of C chart is equal to mean value, right? Upper control limit would be this thing with plus sign, so you have mean value plus 3 sigma. Sigma is your root of mean, so it would be your upper control limit of C chart. And similarly, when you take minus sign here, it will be the lower control limit, C minus 3 C. So what we have to do, we have to take several items, and for each item we count the number of defects on each item. So let's say we took some item 1, 2, 2, 2, 2, so n items. On each item we calculate on, let's say on first item there was 1 defect, on second item there was 0 defect, on third item there was 3 defect, like that. So we count all these numbers, right, and we sum them. So there will be a sum of C, right? Total number of defects on the n components. When we divide this sum, so your C bar, what would be your C bar value, or average number of defects would be equal to total number of defects on n components divided by n number of components. Right, here we are taking that, assuming that in each this subgroup we have only 1 component. If there are more than 1 component in sample, then we have to calculate all those components. So if there are 5
suppose is the subgroup size, means in each subgroup we are taking 5 items, then in n subgroups there would be 5n items, and that would be divided by 5n, right? Okay. Now you may note that when this C bar value is less than 9, then this LCL, lower control limit, will come out negative. But in control charts we cannot have negative control limits. उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपका नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो उसको राउंड अप टू 0 कर देना। ठीक है, अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे करना है। Now we come to the procedure. After understanding how we can find out C bar value and after finding the control limits, अब आपको बताते हैं कि प्रोसीजर क्या है, हाउ वी कैन प्लॉट अ सी चार्ट। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ट्रायल कंट्रोल लिमिट्स। ये जो ट्रायल कंट्रोल लिमिट्स का क्या फंडा है, इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप 20 से 30 यूनिट ऑफ सेम साइज के 20 से 30 यूनिट्स लेने हैं और उन पे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स को ढंग से इंस्पेक्ट करके काउंट करना। ठीक है, अब यहाँ जब आप इंस्पेक्ट करते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, लेवल ऑफ इंस्पेक्शन शुड बी सेम। इसको भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेवल ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है, बस ध्यान रखिए कि आपको लेवल ऑफ इंस्पेक्शन जो है वो सेम रखना है। और अगर आप सब ग्रुप ले रहे हैं तो उस सब ग्रुप की साइज भी सेम रखना है। एक यूनिट ले रहे हैं, एक यूनिट भी ले रहे हैं तो उसकी साइज भी सेम होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक आप एट ए टाइम एक ही आइटम ले रहे हैं तो उसकी साइज सेम होनी चाहिए। अगर आप सब ग्रुप ले रहे हैं तो उस सब ग्रुप में नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल होने चाहिए और लेवल ऑफ जो इंस्पेक्शन है वो भी आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको नंबर ऑफ डिफेक्ट्स काउंट करना है। जब आपने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स काउंट कर लिए, उनका सम करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, और फिर ये जो आपका टोटल यूनिट्स है उसे डिवाइड करना है। देन यू विल फाइंड इनिशियल एस्टिमेट ऑफ सी बार वैल्यू, और इस सी बार वैल्यू आ गई, देन यू नो हाउ टू फाइंड आउट द कंट्रोल लिमिट्स, जो अपने अभी पीछे पड़ा है। ये इस तरह से जब सी बार वैल्यू आ जाएगी आपके पास, तो इन चीज़ों में रख के, आपके इस फॉर्मूले में रख के आपको अपर कंट्रोल लिमिट, इसमें रख के लोअर कंट्रोल लिमिट निकालना है। तो ये काम सबसे पहले आपको करना है। ठीक है, ये जो लिमिट आई है इनको ट्रायल कंट्रोल लिमिट्स बोलते हैं। तो चलिए एक बार हम लोग करके देखते हैं कि ट्रायल कंट्रोल लिमिट्स कैसे आती है। तो ये आप एक एक्सेल शीट में आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ इसको, या फिर विजिबल हो, बाद में कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ लिखा है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब आप कितना सैंपल, तो आपको बताइए 20 से 30, तो मतलब आप 25 तक ले लीजिए। तो हम लोग ये नंबर ऑफ ट्रायल्स लेते हैं। अब नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कैसे काउंट करेंगे, तो आपको जैसे मैंने बताया अभी कि ये प्रोडक्ट अगर कास्टिंग का है, वेल्डिंग का है, या आपका शर्ट है, काउंट कर सकते हैं आप नंबर। आप शर्ट है तो अगर आप अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आपकी जो फ्लोर की टाइल्स है, या तो सिरेमिक की होगी, या कोटा स्टॉप की होगी, या मार्बल की होगी, उन पे आप डिफेक्ट काउंट कीजिए, उनमें नंबर ऑफ क्रैक्स है। तो आप किसी टाइल पे आपको कुछ स्टेन मिल जाएगा, कुछ धब्बा होगा उस पर, या कुछ उसमें क्रैक आया होगा, या उसमें कुछ मटेरियल ऊपर से हटा हुआ होगा, या कुछ सरफेस उसका रफ होगा। So all such you can choose 25 tiles, and on each tile you find out whether you find some defects or not, right? Some there may be a color change, so it will be considered as a one type of defect. If you have a color change as well as a crack, then you will consider as two defects. So wherever you are, right, for these days, you take 25 such tiles of your flooring and count the number of defects. Now in this experimental purpose, I can create a number of defects. So for this you
should go to this data menu. When you press data menu, on right side you have data analysis. So sometimes you will find, sometimes you will not find. If it is not appearing data analysis, then it is disabled. So you Google it, how to enable it, right? If data analysis is present, then you click on it. If it is not, so it must be disabled. So you have to enable it. So for that you can Google. Now, when you press data analysis, you find here some random number generation. Okay, so you go and OK. Now you find here number of variables. So you type 1 because I am taking one type of defect. You can also consider several type of defects, and for those you can have various columns. Now, number of random numbers, you want 25 random numbers, so I am typing here. So what type of distribution you are using? So you go, and since it follows a Poisson distribution P, so I consider it as a Poisson distribution. You keep it. There are several distribution: uniform distribution, normal, Bernoulli, and we are going to use this random number generation method for our normal. For normal distribution, binomial distribution, and discrete and Poisson distribution in incoming classes. So you must remember how to select the distribution. So we have selected a Poisson distribution. Now lambda is the mean value. So when what values of distribution, what value of mean defects I want to produce. So you can take any value. Let's say it's 3 on an average, based on past experience. You can have that. Suppose if you are producing casting, then for each casting you counting some numbers, and for several casting you have taken on an average value, that is the lambda value. So I have considered it as 3, right? Now output, where you want to put these values, so that is output range, and when you select this output range, you want to put here. So I have selected this, okay, and after putting all these values, I press OK. So here you have generated number of defects, right? ये आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसको काउंट करते हैं या जनरेट करते हैं, कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू हमने ऐसे नहीं लिखी है, ये हमने रैंडम नंबर लिखी। तो रैंडम नंबर जो नेचर को ऐसा माना जाता है कि फॉलो करता है। तो अगर आप अगर ऑन एन एवरेज कहीं 3 डिफेक्ट आ रहे हैं और अगर आप 25 कंपोनेंट निकालेंगे तो ऑन एन एवरेज यही इसी तरह के डिफेक्ट वो रियल लाइफ में भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट यूजिंग रैंडम नंबर जनरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यू विल फाइंड सिमिलर थिंग्स, राइट। अच्छा, ये अभी आपने एक कंप्यूटर में किया, दूसरे वाला थोड़ा डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो हमने इसका मीन लिया 3 है, लेकिन अब जरूरी नहीं कि इनका मीन 3 है, क्योंकि 3 वैल्यू तो है बहुत लार्ज पॉपुलेशन के लिए, लेकिन हमने तो 25 का सैंपल लिया, तो जरूरी नहीं कि इसका सैंपल का एवरेज जो आए वो भी 3 ही आए, ठीक है। तो अब देखिए इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपने फंक्शन एक्सेल का यूज करके एवरेज वैल्यू निकालना, तो यहाँ से ये सेलेक्ट किए सारे और ये आपने एंटर मार, ये आपकी एवरेज वैल्यू आ गई। यहाँ आपकी एवरेज वैल्यू भी 3 आ गई, लेकिन ये जरूरी नहीं है आपके इसमें आए, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ आपको 3 चीजें चाहिए कंट्रोल चार्ट को प्लॉट करने के लिए। सेंटर लाइन की तो आपकी क्या है, यही चीज है, ये जो सी बार वैल्यू आई है वही सेंटर लाइन होती है। तो हमने ये सेंटर लाइन ले लिया, इसको फ्रीज कर देते हैं ताकि, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, ठीक है। और इसको हमने ये 25 के लिए भी सेंटर लिमिट ये रहेगी। अब हम लोअर कंट्रोल लिमिट, अब आपको पता लोअर कंट्रोल लिमिट क्या होती है। लोअर कंट्रोल लिमिट होती है सी बार वैल्यू माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट, I use function square root of 3 bar. Okay. Now you find that since my C bar value is less than 9, so it is negative, but it should be 0. I have to round it to 0. तो मैं कैसे करता हूँ आप देखिए,
I will use if function. If ब्रैकेट लगाइए आपका लॉजिकल टेस्ट। अब क्या लॉजिकल टेस्ट क्या है आपका? लॉजिकल टेस्ट आपका है कि अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है, वैल्यू इफ ट्रू, तो ट्रू, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ 0 पुट कर देना, और अगर नहीं है तो यही वैल्यू आपको वापस रख देना। ठीक है, आपको ब्रैकेट वगैरह का ध्यान रखिएगा सारा, एंड यू पुट सो इट कम्स टू 0। अब इसमें आपको फ्रीज करने पड़ेगी, ये आपका सी वैल्यू हमेशा यही रहना, ये कोई फिक्स है ना, तो इसको आप फ्रीज कर दीजिए जाके, प्रेस F4, और जो आपका F4 बटन है उसको आप जाके फ्रीज कर दीजिए, तो ये से। ओके, सो जब आप इसको ड्रैग करेंगे फॉर 25 वैल्यूज, यू विल फाइंड दिस 0। Okay, now what is upper control limit? Upper control limit is equal to C bar plus 3 star means multiplication square root of mean value, that is 3. Okay, and I again freeze all these values to F4 because control limit will be same for all subgroups, no? F4. Okay. ये तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये कंट्रोल लिमिट पे आ गया है, अपर कंट्रोल लिमिट आ गया, सेंट्रल लाइन आ गया, ये आ गया। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल प्लॉट दिस ग्राफ, आई विल प्लॉट दिस सी चार्ट। ओके, सी हाउ आई प्लॉट। यहाँ पे आप इंसर्ट में आपको लाइन चार्ट में आपको चूज फर्स्ट वन, यू हैव ए चार्ट इक्वल, ठीक है, ये आपका एक चार्ट है, इसमें आपको ये सेंट्रल लाइन है, अपर कंट्रोल लिमिट है, ये आ गया। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये छोड़ के आप इससे भी ज्यादा नहीं। ठीक है, तो फॉर 25 वैल्यूज यू हैव plotted a C chart. This is the, and these are the trial control limits. These are the trial control limits. अब आप ट्रायल कंट्रोल लिमिट्स में कई बार ऐसा हो सकता है कि when you plot trial control limits and if any of the point fall above this upper control limit, then there is a problem. Then there is a problem, and that problem has to be resolved. You cannot use these trial control limits for future purpose. So this we have to learn. So we have plotted. Okay. So now we have calculated trial control limits, and next we learn how to interpret a C chart. Now, if any point fall above अपर कंट्रोल ट्रायल लिमिट, अगर कोई पॉइंट अपर कंट्रोल ट्रायल लिमिट से ऊपर फॉल करता है तो ऐसे पॉइंट को हाई स्पॉट बोला जाता है। ठीक है, और ऐसे एक या दो से ज्यादा जितने भी पॉइंट है उन सबको आपको डिलीट करना है। तो आपका मीन्स सपोज 25 ऑब्जर्वेशन है, इसमें से 2 ऑब्जर्वेशन पे आपको क्या मिला, हाई स्पॉट मिल गया, तो इन हाई स्पॉट की वैल्यू को आपको डिलीट करना है। हाई स्पॉट जो है तो आपको डिलीट करना। तो पीछे कितनी वैल्यू रही, 23 रहेगी, तो इन 23 के लिए आपको रिकैलकुलेट करना है सी बार वैल्यू, जैसे अभी अपने ऊपर किया वैसे। ठीक है, और इस सी बार जब कैलकुलेट करेंगे तो अब इस सी बार से लेके आपको फिर वापस कंट्रोल लिमिट्स इस सी बार की वैल्यू को लेके निकालेंगे, फिर आप प्लॉट करेंगे उन 23 वैल्यूज को। ठीक है, और फिर अगर सारे पॉइंट अंदर आ गए तो ठीक है, अदरवाइज फिर कोई पॉइंट ऊपर आ रहा है तो मान लीजिए एक पॉइंट और ऊपर आ गया जो हाई स्पॉट है, तो अब आप रिमेनिंग 22 रीडिंग्स के लिए कंट्रोल चार्ट ये सी बार वैल्यू निकालेंगे और फिर कंट्रोल लिमिट्स करेंगे। तो ये आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। और ये प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब कोई पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर फॉल होता है
और इसको हाई स्पॉट कहलाता है। और ये एक इंडिकेशन है कि आपकी क्वालिटी जो है वो खराब है, डिटीरियोरेट हो चुकी है। और ऐसे समय में आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन फॉर पुअर क्वालिटी, राइट। उस पुअर क्वालिटी को आपको फिक्स करना पड़ेगा, उस रीजन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको फिक्स आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वापस से रीडिंग लेके फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो जब भी आपके हाई स्पॉट आता है तो ट्रायल कंट्रोल लिमिट्स आप फाइनल कंट्रोल लिमिट्स नहीं मान सकते। उसके लिए आपको रिमेनिंग हाई स्पॉट को डिलीट करके बाद में ये रिकैलकुलेट करना है सी बार वैल्यू, और फिर कंट्रोल लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। और ये प्रोसीजर तब तक करते रहना है जब तक कि या तो आपके सारे पॉइंट विद इन कंट्रोल लिमिट्स फॉल नहीं हो जाए, ठीक है। तब तक ये प्रोसेस फॉलो करता रहना। और हो सकता है कि आपने ये जो अभी जैसे हमारे केस में क्या हुआ है, हमारे सारे पॉइंट्स जो 25 के 20.5 विद इन फॉल कर रहे हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन यूज दीज कंट्रोल लिमिट्स फॉर फ्यूचर पर्पस। तो तीन कंडीशन हो सकती है जब आप ट्रायल कंट्रोल लिमिट निकाल के एक सी चार्ट प्लॉट करते हैं। तो अगर आपको हाई स्पॉट मिलते हैं तो मैंने आपको बताया कैसे इसको रिकैलकुलेट करना है सी बार वैल्यू और कंट्रोल लिमिट्स। और जैसा कि हमारे केस में वह सारे पॉइंट्स विद इन कंट्रोल लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन प्रोसीड फर्दर। और अगर कोई पॉइंट, अब मान लीजिए अब जनरली आपको पढ़ाया जाता है कि अगर कोई भी पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट से ऊपर फॉल कर रहा है या लोअर कंट्रोल लिमिट से ऊपर फॉल कर रहा है तो वो प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। डियर स्टूडेंट्स, आप क्योंकि इंडस्ट्री इंजीनियरिंग गुरु पे दूसरे पढ़ रहे हैं तो इसके ध्यान रखिए, ये चीज़ एक्स बार और आर चार्ट के लिए वैलिड है। क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के ऊपर या नीचे फॉल हो रहा है तो प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। लेकिन पी और सी चार्ट के लिए प्लीज नोट डाउन, पी और सी चार्ट के लिए जब आप पी और सी चार्ट पढ़ रहे हैं और अगर कोई पॉइंट लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे फॉल हो रहा है तो ये प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल कदापि नहीं है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर पी चार्ट और सी चार्ट के लोअर कंट्रोल लिमिट से कोई पॉइंट नीचे फॉल होता है तो ये आउट ऑफ कंट्रोल का इंडिकेशन कभी भी नहीं है, बल्कि ये इस चीज का इंडिकेशन है कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी इम्प्रूव्ड आ रही है। और इस केस में आपको इस क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के क्या कारण रहे हैं उनको फाइंड आउट करना है और वॉट एवर द रीजन उसको आपको सस्टेन करना है सो दैट इन फ्यूचर योर क्वालिटी में इम्प्रूव। तो एक बार जब आपका हाई स्पॉट अगर आपने डिलीट कर दिए हैं और आपने सारे आपके विद इन कंट्रोल लिमिट्स आ गए हैं पॉइंट, तो ऐसे समय में जो कंट्रोल लिमिट निकलती है उन कंट्रोल लिमिट को आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जैसे कुछ मैंने आपको प्रिकॉशंस पहले भी डिस्कस की कि जब भी आप सी चार्ट प्लॉट कर रहे हैं, जब भी आप सी चार्ट प्लॉट कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आपका ध्यान रखना है। एक चीज़ है कि आपका लेवल ऑफ जो है इंस्पेक्शन लेवल है वो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो क्या आप चाहेंगे कि अगर मैं लेवल ऑफ मेरा इंस्पेक्शन या इवेल्यूशन अगर वेरी होगा तो क्या होगा, कुछ लड़कों को तो मैं टाइट मार्किंग कर रहा हूँ तो उनके नंबर कम आ जाएंगे और कुछ की मैं अगर लीनियंट मार्किंग कर रहा हूँ तो उनके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। तो ये फेयर नहीं है ना। तो जब भी जो भी कोई इंस्पेक्टर क्वालिटी इंस्पेक्ट कर रहा है या नंबर ऑफ डिफेक्ट्स काउंट कर रहा है तो उसका लेवल ऑफ इंस्पेक्शन सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको कभी टाइट इंस्पेक्शन कर रहा है तो टाइट इंस्पेक्शन करेगा तो हाई स्पॉट बढ़ जाएंगे, और कभी लीनियंट होगा तो उसके लो स्पॉट बढ़ जाएंगे। तो उसका लेवल ऑफ इंस्पेक्शन है वो सेम रहना चाहिए। तो आपको बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंस्पेक्टर से क्वालिटी चेक का काम करवाना, ऐसे नहीं कोई नया नवेला या आया है तो उसको आप क्वालिटी चेक करवाएं। दूसरा जैसे मैंने डिस्कस किया कि सी चार्ट के समय ये जो या तो आप एक ही आइटम ले रहे हैं हर बार, या जो सब ग्रुप साइज है
वो वेरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब ग्रुप साइज जब वेरी करती है तो अपॉर्चुनिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट टू अकर, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी टू ऑफ डिफेक्ट टू अकर ये सेम रहनी चाहिए, और ये सेम तभी होगी जब सब ग्रुप साइज या आइटम की साइज, मैं तो ये बोलता हूँ कि एक आप जब एक आइटम ही ले रहे हैं तो उस आइटम की कम, भाई एक मान लीजिए आपने 2 मीटर स्क्वायर का पीस लिया, एक 4 मीटर स्क्वायर का पीस ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली एरिया बहुत ज्यादा हो गया ना, तो उसमें अपॉर्चुनिटी सेम कहाँ रही। तो आपको अगर एक हर ग्रुप में एक ही आइटम ले रहे हैं तो उसकी साइज सेम होनी चाहिए, और अगर आप सब ग्रुप ले रहे हैं 3 या 4 आइटम का, तो हर सब ग्रुप जो 25 आपने सब ग्रुप लिए, तो हर सब ग्रुप की साइज, और साइज में भी ईच आइटम की साइज वो सेम होनी ही चाहिए, तभी सी चार्ट आपका करेक्ट होगा। दीज टू आर इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस विच आर टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राइंग सी चार्ट। तो चलिए अब हम ये सी चार्ट के बाद में आपको कुछ उधर वापस एक्सेल शीट पे ले चलता हूं मैं, और आपको समझाता हूं कि उसको चार्ट को कैसे आप फर्दर इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो हमने ये जो कंट्रोल लिमिट्स ड्रॉ की है, और हमारी कंट्रोल लिमिट्स में सारे पॉइंट जो प्लॉट किए हैं 25 ये डिफेक्ट्स प्लॉट किए हैं, ये विद इन कंट्रोल लिमिट। तो ये कंट्रोल लिमिट आप फर्दर यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी हाई स्पॉट आता है तो उसमें फिर मैंने आपको जैसे बताया वैसे रिकैलकुलेट करना पड़ता है सी की वैल्यू, और यहाँ से उस चीज़ को डिलीट करते हैं और वो करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट का क्या इफेक्ट आता है, या क्वालिटी डिटीरियोरेट होती है तो उसका क्या इफेक्ट आता है। चलिए मैं 10 रीडिंग और इसमें ऐड करता हूँ, और वो मैं आपको शो करता हूँ कि कैसे इसका इफेक्ट को हम एनालिसिस और कर सकते हैं। Suppose I add few more values to this chart. Okay, so here I again add some. I again go to the data analysis and random. Okay, here I add number of variables is 1. Here random, how many number of random variable? 26 to 38. So 8 or 12. Okay, so 12. Poison, lambda remains same. Okay, so let's say okay, यहाँ पे आपको चेंज करना है, ये साइज कहाँ है, आप यहाँ चाह रहे हैं अभी, तो ये हो गया, और ओके, तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ गई। एक और कम कर दीजिए उसको, चलिए, तो अभी ये आ गया। अभी आपकी कंट्रोल लिमिट चेंज होगी? नहीं होगी भाई, कंट्रोल लिमिट तो वही है ना, क्योंकि आपको यही फ्यूचर के लिए यूज करना है, तो मैंने ये सेम कंट्रोल लिमिट रख दी है। ठीक है, अब इन चार्ट्स को आपको प्लॉट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आइए आप। ये देखिए आपका क्योंकि अभी जो लैम्डा की वैल्यू लिए मीन डिफेक्ट है वो सेम ही है, तो ये तो अभी भी चार्ट हुआ है वही का। अब मान लीजिए हम चेंज करते हैं, अब हम देखिए यहाँ पे चेंज करते हैं, जहाँ पे 26 वाली ये रो है, ये वैल्यू मेरी फोकस पॉइंट है, इसको मैं कुछ डिफरेंट कलर में आपको शो करता हूँ, बार बार आपको दिक्कत थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो प्लॉट किया है ये वैल्यूज है, और इसको मैं आपको शो करता हूँ कि इसका क्वालिटी इंप्रूवमेंट का या क्वालिटी चेंज होती है उसका क्या इफेक्ट आता है। ओके, तो ये डेटा में जाइए आप, और ये डेटा एनालिसिस, और ये सेम थिंग। ओके, अब यहाँ पे देखिए लैम्डा वैल्यू है, ये लैम्डा मान लीजिए 3, तो आपने मान के चले। अब मान लीजिए क्वालिटी आपकी डिटीरियोरेट, क्वालिटी आपकी डिटीरियोरेट होती है, तो ऑब्वियसली है कि 3.5 मान लीजिए अब डिफेक्ट आने लगे। ठीक है, तो ये आपकी चार्ट पे क्या इफेक्ट आएगा भाई। आप जब क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर ओके क्वालिटी चेक कर रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर ईसीजी को देख के बताता नहीं बताता कि अभी आप बीमारी हो गई है या आपको ये प्रिकॉशन लीजिए, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे।
तो उसी तरह से आपको क्वालिटी मैनेजर, आपको चार्ट को आउट ऑफ डिफेक्ट जाने के बाद कुछ नहीं होना, आपको उससे पहले चार्ट को इंटरप्रिटेशन करके देखना है कि प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा तो नहीं सकता है, या क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या। तो उस इंप्रूवमेंट का, तो प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो उसका रीजन पहले पता करो ना। आउट ऑफ कंट्रोल जाने के बाद आप क्या उखाड़ लेंगे, उससे पहले अगर कर रहे हैं तभी तो आप प्रिकॉशन ले सकेंगे। भाई प्रिवेंटिव अप्रोच रख रहे हैं या रिएक्टिव अप्रोच रख रहे हैं, आपको एज ए क्वालिटी मैनेजर आपको अप्रोच है वो प्रिवेंटिव अप्रोच होनी चाहिए। तो उस प्रिवेंटिव अप्रोच के लिए आपको जो चार्ट आप प्लॉट कर रहे हैं, जिस क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए आप जिस चार्ट को मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, और उस मॉनिटरिंग के लिए आपको उसका इंटरप्रिटेशन भी आना चाहिए। तो इस चार्ट को इंटरप्रेट कैसे करते हैं उस चीज को समझते हैं। तो सपोज आप कीजिए कि आपके नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बढ़ने लग गए, ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बढ़ने लगे। अभी आप कैसे पता करेंगे, इस चार्ट से पता होना चाहिए कि हाँ, तब ये आपके पास यही चीज है ना, आप तो सिर्फ चार्ट देख के पता लगेंगे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बढ़े नहीं बढ़े। हम उल्टा चलते हैं, चलो मान लो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स बढ़े, आपको सिखाना है कि कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो है वो बढ़ गए, ठीक है, तो ये हो गया ओके। तो ये नंबर ऑफ डिफेक्ट, अब आप नंबर ऑफ डिफेक्ट बढ़े हैं 3.5 पे, कुछ इफेक्ट आया है, कुछ इफेक्ट आया है, आप देखेंगे कि ये 25 के बाद देखिए मैं मोस्टली सिर्फ 1 2 3 4 रीडिंग, जो पहले इधर उधर रीडिंग आ रही थी सारी, अब क्या हो रही है, इधर रीडिंग लोअर सेंटर लाइन से नीचे रीडिंग बहुत कम है, ऊपर ज्यादा बढ़ रही है। तो ये इंडिकेशन, तो ये थ्योरी ऑफ रन्स आपने देखा होगा कि आउट ऑफ 10 अगर इतने पॉइंट कंट्रोल चार्ट के एक तरफ गिरते हैं, तो पी चार्ट में अगर आउट ऑफ 10 6 पॉइंट एक तरफ फॉल हो रहे हैं, इट मीन्स इट इज एन इंडिकेशन दैट क्वालिटी इज डिटीरियोरेटिंग। और अगर ये पॉइंट नीचे फॉल होते तो इट वाज एन इंडिकेशन ऑफ दैट क्वालिटी इज इंप्रूविंग। सो एक क्लियर कट लेने के लिए हम कुछ थोड़ा अपर वैल्यू लेते हैं, 3.5 की जगह 4 लेके देखते हैं। ओके ओके, तो ये देखिए अब मोस्टली पॉइंट है वो अपर फॉल हो रहे हैं, अभी भी अबव फॉल हो रहे हैं। ठीक है, और अगर और आप उसको देखिए, अगर ये 4 पॉइंट की जगह 5 हो जाता तो क्या इफेक्ट आता, ये देखिए ये पॉइंट जो है आउट ऑफ कंट्रोल चला गया और मोस्टली पॉइंट जो है अबव। तो देखिए आप इस चार्ट में जब आप जैसे डॉक्टर किसी भी देखना है, आपको इस चार्ट को मॉनिटर करना है, और जब आप देखते हैं कि जब ज़्यादातर पॉइंट सेंट्रल लाइन और अपर कंट्रोल लिमिट के अगर बीच में भी फॉल हो रहे हैं, प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, दैट इज फाइन, बट प्रोसेस में गो आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज योर quality started deteriorating, right? So this you should keep in mind, and you should take precautionary steps before your process goes out of control, right? That you should know. Similarly, so this has happened when process is deteriorating, or you can say average number of defects are increasing. Now let's discuss what will happen if process is improving. Process may improve due to several reasons. You have a trained workmanship, performing person, or you have a better workmanship, or you have a very good supplier, or you have a very good quality material, or there are fluctuation and environment reasons which are within control. So in few cases, so let's say we have only 2.5 defects instead of on an average 3 defects. So in such a case, you see that most of the points now, after 25, you observe that most of the points fall below the lower control limit, right? So it, through theory of runs, you can assess that your quality is improving. So in such a situation, you should find out the reason why this quality is improving, and you should try to sustain that quality. Suppose आपने बहुत ही वर्कर है, वो चेंज किया है आपने, ठीक है, या उसकी किसी ट्रेनिंग करवाई है, या आपने रॉ मटेरियल का आपका सप्लायर चेंज हुआ है, या आपने मान लीजिए कोई एक नई मशीन की मेंटेनेंस किसी और बंदे से करवाई है ना। तो ये आपके ऑब्जर्वेशंस आपको देखने को मिलेंगे जब आप मशीन मेंटेनेंस करेंगे, या कुछ चेंजेस या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होते हैं, तो यू विल फाइंड
दैट ये ऐसा क्यों हो रहा है। अब इस क्यों का पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्यों का पता करके ही आप क्या कर सकते हैं, इस क्वालिटी, अगर उस कारण को आप सस्टेन करते हैं, फॉर वट एवर रीजन दिस क्वालिटी हैज इम्प्रूव्ड, इफ यू आर सस्टेनिंग that thing, then in future you can improve the quality। और जब आप फ्यूचर में क्वालिटी इंप्रूव होती है तो आपको ये जो कंट्रोल लिमिट्स है इनको विद इन और आपको चेंज करना चाहिए, और दिस वे यू कैन इम्प्रूव द क्वालिटी बेसिकली। तो आपका जो स्पान है दैट कैन रिड्यूस, जो आपका अपर कंट्रोल लिमिट है, लोअर कंट्रोल लिमिट है। अब आप फर्दर कोई चार्ट बनाएंगे, सी चार्ट के लिए आप लिमिट यूज करेंगे तो उसका स्पान कम हो जाएगा, और ये एक इंडिकेशन है कि क्वालिटी कंट्रोल इंप्रूव हुआ। देखिए आप अगर आप और कम करते हैं, आपका 2.5 की वजह 2 हो जाता है, नंबर ऑफ ऑन एन एवरेज 2 हो जाता है, तो भी आपका ये देखिए सारे पॉइंट्स, और वो भी लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे जा रहे हैं। तो अभी लोअर कंट्रोल लिमिट के पॉइंट नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, ये शो कर रहा है कि प्रोसेस में जबरदस्त आपका इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, और जल्दी से जल्दी आपको इस इंप्रूवमेंट का जो भी रीजन है वो फाइंड आउट करना है और उसको सस्टेन कीजिए, ताकि आप फ्यूचर में भी क्वालिटी प्रॉब्लम से उबर सकें और क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो, आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, और आपका प्रोसेस और आपकी कंपनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बने। तो ये सब आपका इंटरप्रिटेशन पार्ट है। तो पहले आपको चार्ट को कंट्रोल लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आपको 20 से 25 के आसपास ट्रायल्स लेनी है। इसका साइज सेम रखना है। अगर आप सब ग्रुप ले रहे हैं तो सब ग्रुप में नंबर भी सेम रखना है, उसके अंदर आइटम्स है उनका भी साइज सेम होना चाहिए। फिर हम नंबर ऑफ डिफेक्ट्स काउंट करते हैं। नंबर ऑफ डिफेक्ट्स काउंट करके उसका एवरेज निकालते हैं। ये एवरेज वैल्यू निकालेंगे, और जब आप एवरेज निकालेंगे वही आपकी सेंट्रल लाइन होती है, और लोअर कंट्रोल लिमिट होती है ये C बार माइनस 3 टाइम्स C। ठीक है, और अपर कंट्रोल लिमिट है जो आपका C प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ C। तो ये आपका, ये आई थिंक वेयर इज ए प्रॉब्लम, 3 क्रॉस 3 प्लस sorry, how it can come 8 here? Okay, doesn't matter. There is a calculation problem, you can correct it, but I think it should be 3 is 3 plus square root of 3 is 1.73. Okay, it's okay, then it's okay. So this way you can calculate, right? तो आपको पहले ये अपर कंट्रोल लोअर कंट्रोल लिमिट लिखा है, अपर कंट्रोल लिमिट, एंड देन यू कैन प्लॉट। आफ्टर प्लॉटिंग में आपको ये देखना है कि ये कोई हाई स्पॉट तो नहीं है। अगर हाई स्पॉट नहीं है देन वेरी गुड, यू कैन प्रोसीड with this trial control limit, and this trial control limit will be same as your final limits, right? तब आप उसके बाद में आगे आप उसको कंटिन्यूस उसी चार्ट को आपको फ्यूचर में यूज करते रहेंगे, और जो भी आपके पॉइंट है उनको प्लॉट करते रहेंगे। अब आपको इसकी मॉनिटरिंग आनी चाहिए। अगर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आपको लगता है कि सेंट्रल लाइन से और लोअर कंट्रोल लाइन के बीच में पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो रही है। और अगर कोई लोअर कंट्रोल लिमिट से भी बाहर जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं करने का, क्वालिटी जबरदस्त इंप्रूव हो रही है। ठीक है, और अगर आपका लोअर ये जो सेंट्रल लाइन और अपर कंट्रोल लिमिट के इधर पॉइंट ज़्यादा फॉल हो रहे हैं, तो दैट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। तो उसमें आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि क्वालिटी डिटीरियोरेट होने से पहले ही फाइंड आउट करना कि इसका क्या कारण है कि क्वालिटी मेरी डिटीरियोरेट हो रही है। ठीक है, और अगर पॉइंट अपर कंट्रोल लिमिट से ऊपर ही आ गया है तो आपको प्रोसेस को स्टॉप करना पड़ेगा। तो प्रोसेस को स्टॉप करने से पहले अगर आप इवेल्यूएट कर पाते हैं
कि मेरा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो वो एक क्वालिटी इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट वर्क है, ये पता करना कि प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल से पहले वो पता करें कि प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। If you like today's session, please share this video. Thank you for patience hearing.